ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के एक और नवीन अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता राणा। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के अंक में स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट के अंतर्गत आप सुनेंगे इग्नू के विद्यार्थियों से बातचीत। आपका परिचय करवाएंगे इग्नू के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इग्नू से शिक्षा प्राप्त करके हासिल की हैं कुछ खास उपलब्धियां, यानी वो हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। ओपन माइक सेगमेंट में आपको देंगे विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई जानकारियां, तो वहीं विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाएंगे कुछ मोटिवेशनल बातें। साथ ही होंगी इग्नू में इन दिनों चल रही गतिविधियों से संबंधित जानकारियां। करियर सेगमेंट में आप जानेंगे कैसे बनाएं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में अपना करियर। कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में आज जानेंगे विश्व संस्कृत दिवस के विषय में। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट से। हमने बात की इग्नू की एक छात्रा मनाली आचार्य से, जो इग्नू से BLS यानी बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस प्रोग्राम कर रही हैं। उन्होंने इग्नू के साथ हुए अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। I'm truly happy to share how IGNOU has been a turning point in my life. For 15 years, I was a full-time homemaker devoted to raising my daughter and managing family responsibilities. But as she grew older, I felt a strong desire to rediscover myself, to create a career and an identity of my own. Since attending a traditional college wasn't possible due to my personal commitments, IGNOU became the perfect solution. As a graduate in computer science, I chose to shift fields and follow my passion for library science. I enrolled in the Bachelor of Library and Information BLIS program at IGNOU. The flexibility, affordability, and constant academic support were just what I needed. After completing BLIS, I went on to pursue my Masters in Library and Information Science, also through IGNOU. These academic milestones gave me the motivation and confidence to appear for the competitive exams like NET and SET, and by God's grace, I was able to clear both. My journey into the professional world began soon after, and today I proudly serve as a college librarian. IGNOU has given me more than just education. It gave me a second chance, a purpose, and the self-belief to follow my dreams. To every student listening today, I want to say this: don't be discouraged by your circumstances. With dedication, determination, and right opportunity, you can overcome any challenge. Thank you, IGNOU, for empowering me to grow, evolve, and become who I am today. आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आप बात करते हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। इग्नू अपने शिक्षार्थियों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करता है, जिससे उनके करियर को नई ऊंचाइयां मिलती हैं। इग्नू के एक ऐसे ही विद्यार्थी हैं सौरिश चटर्जी, जिन्होंने इग्नू से PhD इन जियोलॉजी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। कैसा रहा उनका यहाँ तक का सफर, आइए जानते हैं। PhD and research has always been a dream to me, and IGNOU is definitely, having started the doctoral courses, it has been a very good opportunity for people like us and also people who are working outside to carry on their dreams in research. All I would say is that I've had a wonderful time here, and the university completely supports, guides the students in the right direction for their research career. In my opinion, it's very good initiative from the university to start these doctoral courses once again, and this continues and brings the university further good research. आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इग्नू अपने शिक्षार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के कार्यक्रम उपलब्ध करवाता है। साथ ही इग्नू की शिक्षा व्यवस्था बेहतर और लचीली है, जो शिक्षार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन को बेहतर तरीके से समायोजित करने का भी अवसर देती है।
आप कैसे इग्नू से अपने पसंद के प्रोग्राम में प्रवेश ले सकते हैं और क्या है इग्नू में अपने विद्यार्थियों के लिए खास, आइए इस विषय पर विस्तार से जानकारी लेते हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित इग्नू के स्टडी सेंटर हिंदू कॉलेज के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर AK सिंह से। विद्यार्थियों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो प्रारंभ है। यदि आप आगे पढ़ना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं, इस समय इग्नू में प्रवेश लेकर के आप अपना करियर बना सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यहाँ आप घर बैठे अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार अपने मन चाहे विषय को चुन सकते हैं, वो भी कम फीस में और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ। स्नातक, परास्नातक, PG डिप्लोमा या डिप्लोमा कोर्स, इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स भी इग्नू में कराए जाते हैं। विभिन्न विषय हैं जिसमें कि आप अपनी ज़रूरत के रोजगार परक कोर्सेज को भी चुन सकते हैं। इग्नू ने कुछ ऐसे कोर्स भी शुरू किए हैं जो कि भारत की सांस्कृतिक अस्मिता और परंपरा को भी चिन्हित करते हैं, जिसमें MA ज्योतिष, MA भगवद गीता, MA हिंदू स्टडीज़ के साथ साथ MA अप्लाइड उर्दू भी हमारे पास कोर्स के तौर पे मौजूद है। चाहे आप विद्यार्थी हों, गृहिणी हों, व्यवसायी हों, कर्मचारी हों, वरिष्ठ नागरिक हों, हर वर्ग के लिए इग्नू में कुछ न कुछ कोर्स मौजूद है। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अब आपको देते हैं इग्नू में चल रही इन दिनों की गतिविधियों से संबंधित जानकारियां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जुलाई सत्र 2025 के लिए ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब भी जारी है। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आवेदन ignuadmission.samarth.edu.in और ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए आवेदन ignuiop.samarth.edu.in पर जाकर लॉगिन करना होगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इग्नू में री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जारी है और यदि आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप PhD के लिए भी अभी इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां आप इग्नू की वेबसाइट से पा सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू द इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल यानी IIC एक स्टार्टअप कंपटीशन 2025 का आयोजन कर रही है। इस प्रतियोगिता में इग्नू के छात्र और पूर्व छात्र भी भाग ले सकते हैं और अपने स्टार्टअप या बिजनेस वेंचर की विस्तृत जानकारी इस प्रतियोगिता में भेज सकते हैं। ये प्रतियोगिता 2 राउंड में होगी, जिसके पहले राउंड के लिए एंट्रीज आप 10 अगस्त 2025 तक भेज सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। UGC मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी MMTTP और इग्नू के संयुक्त संयोजन से 24 दिवसीय प्रोग्राम फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम गुरु दक्षता का आयोजन किया जा रहा है, जो 18 अगस्त से 19 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन मोड से आयोजित किया जाएगा। इस प्रोग्राम में सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज भाग ले सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 है। तो ये थी जानकारी इग्नू से जुड़ी हुई। क्या आप जानते हैं आपका मस्तिष्क आपके जागते हुए 25 वॉट शक्ति प्रयोग करता है। इतनी शक्ति एक बल्ब को जलाने के लिए पर्याप्त है।
आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जानते हैं कैसे बना सकते हैं आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपना करियर। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ये फील्ड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एप्लीकेशन से रिलेटेड है, जो छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने पर केंद्रित है। ये छात्रों को कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिजाइन, माइक्रो प्रोसेसर, पावर जनरेशन आदि जैसे कोर इंजीनियरिंग विषयों में फंडामेंटल नॉलेज का वाइड रेंज प्रदान करती है। वर्तमान में इस फील्ड से संबंधित बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसे आप कर सकते हैं। हालांकि ग्रेजुएशन इसमें बेहद जरूरी है। इसके लिए आपके पास साइंस विषयों के साथ पास होना अनिवार्य है। वहीं अगर छात्र चाहते हैं तो वे 10वीं के बाद भी अपनी पसंद के किसी भी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये फील्ड टेक्निकल लाइन से संबंधित है, जिसमें छात्रों को टेक्निकल बातें यानी मशीन से संबंधित जुड़ी हुई जानकारियां दी जाती हैं। आज के समय में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कोर्स तेजी से छात्रों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। इसे करने के लिए छात्र भी जागरूक हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा, डिग्री और PhD लेवल के कोर्सेज भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक रोमांचक और बेहद ही अच्छा करियर हो सकता है, जो विभिन्न प्रकार के नौकरी के अवसर और विकास की संभावनाएं प्रदान करता है। तो यदि आप भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये क्षेत्र आपके लिए बिल्कुल सही है। तो ये थी जानकारी कैसे बना सकते हैं आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपना करियर। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट यानी मोटिवेशनल थॉट्स की ओर। महान दार्शनिक, योगी और शिक्षाविद श्री अरबिंदो घोष का शिक्षा के विषय में कथन है, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को उसकी आंतरिक शक्तियों और संभावनाओं को उजागर करने में मदद करना है। यानी शिक्षा का लक्ष्य बच्चे की आत्मा, मन और शरीर का संतुलित विकास होना चाहिए। कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत आइए अब जानते हैं विश्व संस्कृत दिवस के विषय में। विश्व संस्कृत दिवस प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये दिन संस्कृत भाषा के महत्व, इसके साहित्य, दर्शन और सांस्कृतिक योगदान को विश्व स्तर पर प्रचारित करने और इसे जीवित रखने के लिए समर्पित है। विश्व संस्कृत दिवस का आयोजन पहली बार 1969 में शुरू हुआ था, जब भारत सरकार ने संस्कृत भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसके अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को मान्यता दी। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। ये भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, विज्ञान, साहित्य और कला का आधार रही है। ये दिन न केवल संस्कृत के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है, बल्कि इसे आधुनिक संदर्भ में जीवित और प्रासंगिक बनाए रखने का भी प्रयास करता है। संस्कृत भारतीय संस्कृति की आत्मा है। वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण और न जाने अन्य कितने ही ग्रंथ इसी भाषा में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को सजोए हुए हैं। इस दिन का उद्देश्य इस विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी है। साथ ही संस्कृत को केवल भारत तक सीमित न रखकर इसे वैश्विक मंच पर ले जाना, ताकि विश्व भर के विद्वान और भाषा प्रेमी इसके महत्व को समझ सके। संस्कृत को देववाणी कहा जाता है, क्योंकि ये प्राचीन भारतीय ग्रंथों और धार्मिक अनुष्ठानों की भाषा रही है। ये न केवल भारत की बल्कि विश्व की कई भाषाओं की जननी भी मानी जाती है, क्योंकि इसके शब्द और व्याकरण यूरोपीय भाषाओं जैसे ग्रीक और लैटिन से भी संबंधित हैं। इसे जीवित रखने और इसके प्रचार प्रसार के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है, ताकि ये भाषा और इसका ज्ञान विश्व भर में फैल सके।
तो ये थी जानकारी विश्व संस्कृत दिवस के विषय में। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने, स्वर एवं आलेख सविता राणा का, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक को यहीं संपन्न करते हैं। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा